ओके, सो हम कह रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दे कंटेन कार्बन एंड कार्बन शोज कैटिनेशन. And what is catenation? That is the ability of carbon atoms to combine and forming long chains. So carbon-carbon bond, nitrogen-nitrogen bond. So bond strength of carbon-carbon bond is greater than nitrogen-nitrogen bond because of the presence of lone pairs on the nitrogen, and which in turn stronger than oxygen-oxygen. Again, due to the presence of two lone pairs on each oxygen. Though carbon-carbon bond length is more than nitrogen-nitrogen. So organic chemistry means chemistry of carbon. So what are organic compounds? So obviously organic compound means which contains carbon. Compounds which contain carbon, they are called organic compounds. Okay, so like see methane, glucose, ethanol, carbon dioxide, carbon monoxide, sodium carbonate, sodium bicarbonate, ammonium bicarbonate, sodium chloride, HCl. Now out of these, see the list 1, it contains carbon. So they are obviously organic compounds, and other one is inorganic compounds. So is carbon dioxide is an organic compound? Yes, sir. Carbon monoxide is also organic compound, right? Sodium carbonate, sodium bicarbonate, ammonium cyanate. Okay. Any comment from other? No, sir, it's not a organic compound. Okay, why? I don't know, sir. Okay. कोई और बोलेगा कुछ? Sir, due to triple bond. ओके, और कोई कमेंट? एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं obviously they are contain carbon, but that carbon atom should be bonded to hydrogen, right? They are hydrocarbons or their derivatives. So see in methane it is hydrocarbon, in glucose even there is carbon hydrogen, in ethanol there is carbon hydrogen, but in CO2, CO, Na2, CO3, NaHCO3, this hydrogen is not attached to carbon in NaHCO3. See, it is like this. Sorry. C double bond O, OH, ONA. It is like this. That means carbon in CO2, in CO, in NH4, CNO,
carbon is not attached to hydrogen. That's why they are not regarded as organic compounds. Keep in mind. सर पर यहाँ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नीचे ही उनके नाम लिखे हैं। जस्ट टू से कि मतलब फिगर आउट कर सकते हो आपके नहीं, इसलिए लिखे हैं, ठीक है ना। सर तो कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके साथ हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, कार्बन शुड बी अटैच्ड टू हाइड्रोजन, और इफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेट्रो एटम, बट यहाँ पे CO2, CO, you know, carbonic acid, they are all inorganic acids and inorganic salts. Carbon dioxide especially, it is not regarded as a organic compound. So CO, CO2, metal carbonates, bicarbonates, cyanates are inorganic compounds, though they contain carbon. क्योंकि हम यहाँ पे यही बोलते हैं कि these compounds do not follow the properties of organic compounds, ठीक है। जैसे अब CCl4 है तो आप बोलोगे सर CCl4 में भी तो हाइड्रोजन नहीं है ना, बट दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। बट CCl4 जो है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। मीथेन के एक हाइड्रोजन को हटाएं तो वी गेट क्लोरोफॉर्म। सो मीन्स 3 अगर हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बनता है CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो करेक्ट क्लासिफिकेशन इज दिस। So these are inorganic compounds. So organic compounds are generally extracted from living organism, you know, sugar, urea, और inorganic compounds तो स्टडी ऑफ, अब देखो यूरिया में भी क्या होता है NH2CONH2, but because it is obtained from living organism, that's why it is treated as organic compound. But in most of the cases it is carbon attached to hydrogen. So rocks, minerals, they are all inorganic compounds. So in 1815 Berzelius जो था उसने सबसे पहले दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी। उसने क्या प्रपोज किया था कि कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में हेल्प करती हैं। इसलिए ये जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लैब। तो लैब की सिंथेसिस इनकी पॉसिबल नहीं है, ऐसा उसने जो है प्रपोज किया, बट दैट वाज अ मिथ। सो इन 1828 जो वॉलर था उसने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर दिया लैब में, दैट इज यूरिया फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया उसने अमोनियम साइनेट, और अमोनियम साइनेट को उसने हीट किया, देन ही गेट यूरिया। सो ये जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया जो बना इनऑर्गेनिक कंपाउंड से और लैब में बना, तो दैट वाइटल फोर्स थियरी जो है दैट वाज डिस्कार्डेड, एंड देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है दैट फ्लरिश। देयर आर न्यूमरस सिंथेसिस, और पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक और दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लैब। सो वाइटल फोर्स थियरी जो है दैट वाज डिस्प्रूव्ड बाय वॉलर इन 1828। देन इन 1845 जो कॉल्बे था
उसने जो है एसिटिक एसिड सिंथेसाइज कर दिया उसके एलिमेंट से, और 1856 में बर्थेलॉट ने जो है मीथेन सिंथेसाइज कर दी। सो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है स्टार्ट हो गई। अब तो मतलब आप बोल ही नहीं सकते कि एक दिन में कितने कंपाउंड जो है सिंथेसाइज होते हैं, और वो भी नोवेल। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Option 1. yes they are extracted from living organism, and first synthesized compound urea that was obtained from Option 2. ammonium cyanate. So what is the importance of chemistry? So if you say organic compounds, they are used in pharmaceutical industries. मैंने अभी बात करी, all the medicines are available which are organic origin, and they are synthesized in the lab. पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री पीपल हैं उन पर डिपेंडेंट है। देन कम टू पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। सो petroleum products, they are all organic. LPG, kerosene, petrol, diesel. Dye industries, there are so many organic dyes, indigo, azo dye. Polymer industries, पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ते हो आप, नाइलॉन, टेरिलीन। सर प्लास्टिक भी होता है? हाँ, प्लास्टिक इंडस्ट्री पूरी मतलब पूरा पॉलीमर इंडस्ट्री जो है दैट इज आल्सो ऑर्गेनिक। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, परफ्यूम्स हैं, क्रीम्स हैं, टेल्कम पाउडर्स हैं, दे आर ऑल ऑर्गेनिक ओरिजिन। इवन फूड इंडस्ट्री, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एजेंट्स। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जो भी फर्टिलाइजर होता है, जो पुराने फार्मर्स हैं वो उसको सारे यूरिया ही बोलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसमें पोटेशियम बाकी एलिमेंट्स भी हों, बट वो बोलते हैं उसको यूरिया ही है सीधा। कोई ऐसा नहीं बोलता कि फर्टिलाइजर लेके आए, बोलता यूरिया लेके आए हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, all the fibers are made are of organic origin. Soap industry. So organic chemistry जो है actually it is the study of hydrocarbons and their derivatives. तो जनरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे हैं नंबर में। क्यों? एक तो बिकॉज ऑफ देयर हाई कैटेनेशन, और हाई कैटेनेशन क्यों है? ड्यू टू हायर कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, और उनका आइसोमेरिज्म, और दे कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो हैं वो भी सिंथेसाइज हो रहे हैं लैब्स में। और ये जो एबिलिटी है कार्बन की लॉन्ग चेन बनाने की या रिंग्स बनाने की, उसको बोलते हैं हम कैटेनेशन। और हाईएस्ट कैटेनेशन एबिलिटी वाला जो एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, दैट इज कार्बन ओनली। और टेट्रावैलेंसी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इट हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स।
तो टेट्रावेलेंसी कार्बन जो है शो करता है वो सिंगल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं चारों, 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, 1 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, 1 ट्रिपल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है ना। ऑल 4 सिंगल बॉन्ड्स हो सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, 1 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड्स हो सकते हैं, 1 ट्रिपल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड हो सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कार्बन की, 1s2 2s2 2p2। और एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है कार्बन तो एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s इज शिफ्टेड टू 2p, तो इट बिकम्स 2s1 2px1 2py1 2pz1। देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स and that's why it can form 4 bonds। और एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज 501.6 किलो जूल पर मोल। देयर इज नो नीड टू रिमेंबर इट। तो पहला हाइड्रोकार्बन लेते हैं एल्केन्स। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एल्केन्स? sp3। हाँ, क्योंकि एल्केन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स और बाकी क्या होंगे हाइड्रोजन्स, एंड देयरफॉर 4 सिंगल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। और इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम और बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम और इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल और एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। हाँ, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन याद करना है। कंपैरिजन कि एल्केन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बॉन्ड लेंथ जो है 1.34 एंगस्ट्रॉम है और जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो स्लाइटली स्मॉल होता है देन sp3 और ये है ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री एंगल है। यस बेटा। सर sp2 होने से CH के बॉन्ड लेंथ पे क्यों इफेक्ट होगा? मैंने बोला ना कि जो हाँ बेटा, एक्चुअली क्या है sp2 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होता है दैट इज स्लाइटली ऑर्बिटल जो है वो स्मॉलर होता है देन sp3। तो जब छोटा ऑर्बिटल हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। sp3 वाला जो बड़ा होता है ऑर्बिटल तो इसलिए वो हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी। समझे? ऑर्बिटल के साइज की बात आई, बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल साइज। इसमें sp है जैसे तो बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन की 1.20 हो जाएगी और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ भी थोड़ी सी कम हो जाएगी 1.06 हो जाती है और ये होता है लीनियर एंड 180 डिग्री एंगल। केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है सारा। नाउ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। और पाई बॉन्ड बनता है बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो अब अगर कार्बन और हाइड्रोजन की टाइप्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्राइमरी कार्बन होते हैं, ऐसे कार्बन जो एक ही कार्बन से अटैच हो, एक और कार्बन से या किसी भी कार्बन से अटैच ना हो, उनको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी हाइड्रोजन मीन्स ऐसी हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन से अटैच है, उसको हम प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। वैसे ही सेकेंडरी कार्बन क्या होगा? कार्बन जो 2 और कार्बन से अटैच हो तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। और सेकेंडरी हाइड्रोजन जो है दैट इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन। तो टर्शरी कार्बन क्या होगा? जो कार्बन 3 कार्बन से अटैच। हाँ, 3 कार्बन से अटैच हो दैट इज टर्शरी कार्बन। और टर्शरी हाइड्रोजन जो टर्शरी कार्बन से अटैच हो दैट इज टर्शरी। वैसे ही क्वाटरनरी कार्बन भी होता है
कार्बन जो 4 और कार्बन से अटैच हो, बट क्वाaternary हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों? टर्शरी कार हाँ, कार्बन ने 4 बॉन्ड ही बना लिए तो हाइड्रोजन जो है वो उससे अटैच हो ही नहीं पाएगा। ओके, गुड। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें तो जैसे देखो, ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑल द बॉन्ड्स आर शोन, देखो सिंगल बॉन्ड्स आर शोन बाय 1 लाइन, और एटम्स भी पूरे हम शो करें तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं इट इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें कोई बॉन्ड हाइड नहीं किया हमने, हाइड्रोजन भी शो किए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड भी शो किया, कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी शो किया, कार्बन का सिंबल भी शो किया, सारे सिंबल भी हों, सारे बॉन्ड भी दिखाएं हम, और हाइड्रोजन्स कार्बन सब आपके सामने है। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नाउ कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कंडेंस्ड में क्या होता है, जैसे CH3 था, हम ऐसे लिख दें तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड भी शो नहीं कर रहे हम, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी, पर हमें पता है कि अगर कार्बन ने 3 हाइड्रोजन से अटैच है तो ऑब्वियसली कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। इथीन, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो ऑब्वियसली कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, टेट्रा वैलेंसी शो करनी है। नाउ बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है, जैसे C4H10 है, मतलब 4 कार्बन अटैच हैं, किस तरह से अटैच हैं, लेट अस से दिस, मतलब स्ट्रेट चेन में अटैच है, तो हम कार्बन कार्बन को ना जिगजैग फैशन में लिखते हैं, याद रखना। तो दिस इज एक्चुअली ब्यूटेन। अगर हमने इसका कंप्लीट फॉर्मूला लिखना होता तो कैसे लिखते बोलो? हम इसको चारों कार्बन बनाते, पहले चारों कार्बन के साथ ऐसे हाइड्रोजन लगाते, ठीक है। वैसे ही कंडेंस्ड लिखना होता तो हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, और बॉन्ड लाइन हमने ये लिखा, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। साइक्लिक कंपाउंड जनरली हम जो है वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही लिखते हैं। इसमें देखो, ना तो हम कार्बन शो कर रहे हैं ना ही हाइड्रोजन। हमें पता है अगर यहाँ एक कार्बन है तो कार्बन ने एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है तो ऑब्वियसली 3 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन ने, यहाँ भी एक कार्बन है, 2 अगर सिंगल बॉन्ड बनाए हैं तो 2 हाइड्रोजन होंगे। ये कार्बन ने 2 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं तो 2 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन होंगे। दैट्स इट। Now structural representation of organic molecules, 3-dimensional representation of organic compound molecules। तो पहला है वेज डैश फॉर्मूला। वेज और डैश, इस तरह से हम, ये सॉलिड वेज है और ये डैश्ड वेज। वेज, सॉलिड वेज मतलब ऑब्जर्वर की तरफ अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसको सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर दूर जा रही है, बॉन्ड दूर है, तो उसको डैश्ड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखना है तो इस तरह से लिखते हैं। जैसे देखो, एक कार्बन है, ये 2 हाइड्रोजन प्लेन में हैं, और ये अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो ये है towards the observer,
और ये जो है इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, हाँ बेटा। ये दो प्लेन में है, ठीक है। हाँ, ओके। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड कौन सा था? यूरिया। इट इज यूरिया। यूरिया was synthesized by it was synthesized by Wohler. Good. Kolbe synthesized मीथेन। Kolbe synthesized acetic acid. बर्थेलॉट कौन मीथेन किसने सिंथेसाइज की थी? लास्ट जो फेलो था उसने। ओके, मीथेन वाज आ गया। मीथेन वाज सिंथेसाइज्ड बाय बर्थेलॉट। तो सर बर्जिलिस ने क्या किया? बर्जिलिस ने मीथेन इसने करी तो उसने एलिमेंट से उन्होंने बोला था कि नहीं हो सकता कुछ भी कंपाउंड्स का। वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी बर्जिलिस ने। यस सर। हाँ, तो वाइटल फोर्स थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय बर्जिलिस, है ना। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं पहले कंपोजिशन, तो मेनली दे कंटेन कार्बन, इट मे कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, nitrogen and halogen as heteroatoms. They show catenation, that you know what is catenation. और कंडक्शन की बात करें तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री इन दिस। कॉम्प्लेक्सिसिटी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। Combustibility, so most of the organic compounds are combustible. They react with oxygen. Melting and boiling point, तो उनका melting and boiling point क्या होगा? लो। Now isomerism, तो कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म होता क्या है? द प्रॉपर्टी है कंपाउंड की जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले शो करते हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है उनका सेम, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं
दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। देखा होगा आपने पेट्रोल डीजल, दे आर ऑल ऑर्गेनिक, तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। Sir, except ethanol, हाँ जी, except for ethanol and methanol. नहीं, इथेनॉल, मिथेनॉल, शुगर, यूरिया, देर आर सो मैनी, बट मोस्ट ऑफ द, ये तो नंबर ही है ना, कुछ नंबर हैं जो मतलब सॉल्युबल होते हैं, जिनमें OH ग्रुप हो या पोलर ग्रुप हो कोई, है ना। बट ऐसे हम देखें जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, है ना, दे आर जनरली इनसॉल्युबल। इसलिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर वाटर से बनाता है कोई तो सॉल्युबल हो जाएगा। तो जैसे शुगर है ना, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है ना, दे आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। एसिटिक एसिड है, हाँ जी, तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाँ जनरली वही सॉल्युबल होते हैं। बाकी सारे हाँ, जैसे फिनोल है, तो फिनोल भी बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट क्योंकि बेंजीन रिंग जो है ड्यू टू हायर हाइड्रोकार्बन पार्ट, वो पार्शली सॉल्युबल हो जाता है। तो वो भी डिपेंड करता है कि हाइड्रोकार्बन चेन कितनी लंबी है ना। अगर हाइड्रोकार्बन चेन जितनी लंबी होगी इनसॉल्युबल होता जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। मींस स्टेबिलिटी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं दे आर लेस स्टेबल। मल्टीपल बॉन्ड तो दे कैन फॉर्म, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, सिंगल डबल ट्रिपल। लिंकेज तो जनरली क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। पॉलीमराइजेशन इट कैन अंडरगो, जैसे इथीन पॉलीथीन देती है, इथीन की पॉलीमराइजेशन करें तो वी गेट पॉलीथीन रिएक्शन। Polymerization means there is a cluster of large number of compounds together। जैसे मैंने इथीन लिया, तो इथीन अगर n नंबर ऑफ इथीन जो हैं, n मीन्स 100 1000 हो सकता है, तो ये सारे अगर आपस में जुड़ जाएं तो वी गेट पॉलीथीन। ठीक है, मीन्स पॉलीमराइजेशन मीन्स कि एडिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स टुगेदर, तो एक दूसरे से कंबाइन करके एक लंबी चेन बनाएं। और ये तभी पॉसिबल है, मतलब मोनोमर से बनता है पॉलीमर। पहले हमें मोनोमर होना चाहिए हमारे पास, तभी पॉलीमराइजेशन होगी, पॉलीमर तभी बनेगा। अब मोनोमर के लिए क्या कंडीशन है कि या तो उसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, पहली कंडीशन कि मल्टीपल बॉन्ड हो तो वो मोनोमर की तरह एग्जिस्ट कर सकता है, और या फिर उसमें एटलीस्ट टू फंक्शनल ग्रुप्स हो। at least two functional groups हो that can behave as a monomer, और फिर वो आपस में जो है जुड़ जाते हैं और जुड़ के बड़ा चेन बनाते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। और दैट इज कॉल्ड पॉली। पॉली मीन्स मैनी, मैनी मॉलिक्यूल्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर we get a polymer, and this process of combining of small molecules to give a big molecule, that is called polymerization। small parts से बना हो उसको हम पॉलीमराइज बोलते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो ऑल्सो इट डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी, और क्योंकि कोवलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो जनरली स्लो,
क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा पहले. इनऑर्गेनिक रिएक्शंस आर फास्ट एक्चुअली. ऑर्डर हैव करेक्टरिस्टिक ऑर्डर डिपेंड करता है. जैसे ईस्टर हैं सारे स्वीट्स प्लेजेंट स्मेलिंग होते हैं. एमीन्स फिशी ऑर्डर होता है. फंक्शनल ग्रुप, तो ऐसा पार्ट मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल के करेक्टरिस्टिक्स को, प्रॉपर्टीज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनको डिटरमिन करे, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड. सो कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी होंगे सब में कौन सा ग्रुप होगा? COOH. aldehydes, all aldehydes have CHO group and they have some of the similar properties. होमोलॉग सीरीज क्या होती है, बता सकते हैं? सर जैसे दो कार्बन की C2H6 होता है, हाँ, और फिर अगर उसी को C4H12 और ऐसे अगर हम करते जाएं तो फिर वो होमोलॉगस सीरीज बनती है. हाँ, मतलब कि ऐसा कंपाउंड जो है जिसमें CH2 ग्रुप ऐड होता जाए. CH2 ग्रुप ऐड करते जाते हैं ना, जैसे मिथेन. तो अगर CH2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3. एक और CH2 ऐड करेंगे, सोन. ऐसे CH2 ऐड करते जाओ तो वी विल गेट द कंपाउंड्स. सो ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड जिसमें सक्सेसिव मेंबर जो हैं दे डिफर बाय CH2 ग्रुप, दे आर कॉल्ड होमोलॉग्स, और सीरीज ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड होमोलॉग सीरीज. एल्केन्स की ये मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सो ऑन. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर. जैसे ये है, तो ये जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे क्लासिफाई करेंगे हम? पहला क्या बोलेंगे पहले को? इट इज नॉर्मल ब्यूटेन. हाँ, अभी एल्केन है बट इट इज नॉर्मल एल्केन, नॉर्मल ब्यूटेन, 4 कार्बन है ना. और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? साइक्लो, है ना. तो इट इज साइक्लोब्यूटेन. तो दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? सर क्लोज्ड रिंग और ओपन चेन. हाँ, तो नॉर्मल ब्यूटेन इज एन ओपन चेन कंपाउंड और साइक्लोब्यूटेन इज अ क्लोज्ड चेन कंपाउंड. तो एक में ओपन चेन है, दूसरे में क्लोज्ड. तो जिसमें भी क्लोज्ड चेन होती है हम उसमें साइक्लो वर्ड लगा देते हैं. सर हाँ जी बेटा. सर ओपन और क्लोज रहने से भी उसके केमिकल और फिजिकल बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है एंगल स्ट्रेन आ जाएगा ना. देखो जो ओपन चेन है उसमें टेट्राहेड्रल एंगल होगा, बट अगर क्लोज चेन कर दिया आपने तो एंगल तो हो गया 90. तो देयर इज एंगल स्ट्रेन. इट शुड बी एक्चुअल नॉर्मल स्टेट में कितना होना चाहिए एंगल, क्योंकि कार्बन तो सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है. तो इट शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट. बट ये एंगल तो कंप्रेस हो गया, तो ड्यू टू कंप्रेशन ये अनस्टेबल हो जाएगा. इसलिए साइक्लोप्रोपेन हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन एंगल 60 डिग्री हो जाता है. देयर इज अ लार्ज एंगल स्ट्रेन एंड देयरफॉर वो एकदम ब्रेक होता है जल्दी. सर तो जितना एंगल कम उतना वो ज्यादा जल्दी. बिल्कुल, क्योंकि वो कंप्रेस हो रहा है ना, नॉर्मल स्टेट में नहीं है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड. हाँ जी, हाँ जी बोलिए.
हाँ, क्योंकि वो मार्शी एरिया में होती है बच्चे। जनरली आपने देखा है जब मार्शी एरिया होता है वहाँ पे स्मेल आती है ऐसे, है ना, CS2, और इस तो मीथेन वहाँ जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, इसलिए उसको मार्श गैस बोलते हैं, है ना। सिम हाँ जी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो ओपन चेन हो सकते हैं या क्लोज चेन हो सकते हैं। ओपन चेन को हम बोलते हैं एलिफेटिक और एसाइक्लिक, और जो क्लोज चेन होते हैं उनको बोलते हैं साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स। साइक्लिक और रिंग कंपाउंड हम बोलते हैं उनको। तो ओपन चेन कंपाउंड्स याद रखना है, एलिफेटिक, और इट इज नॉट एलिसाइक्लिक, इट इज एसाइक्लिक, है ना। तो जैसे ये दोनों हैं, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? सर एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो अब ये याद रखना कि नॉर्मल ब्यूटेन जो है उसमें चारों कार्बन जो हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं। अगर एक कार्बन जो है ब्रांचिंग में आ जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ओके, इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? पोजीशन। सर एक में हाँ, बोलो बोलो। सर एक में सारे हाँ एक कार्बन हाँ, और एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और दूसरा ब्रांच चेन कंपाउंड है। इसमें ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये प्राइमरी। इसमें ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, और ये कौन सा हुआ? टर्शियरी, है ना। तो नॉर्मल ब्यूटेन जो है, नॉर्मल ब्यूटेन का अगर प्राइमरी हाइड्रोजन हटाएं हम, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। और इसी का अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन हटाएं तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन की बात करें तो आइसोब्यूटेन का प्राइमरी हाइड्रोजन हटाएं तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। और अगर हम इसका टर्शियरी हाइड्रोजन हटाते हैं तो इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अभी पढ़ा हमने, तो इससे अगला क्लासिफिकेशन हो गया ओपन चेन का स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कंपाउंड्स। वैसे ही अब क्लोज चेन की बात करें अगर, तो देखो ये क्लोज चेन है। अब क्लोज चेन में एक में सिर्फ कार्बन है क्लोज चेन में, और एक में क्या आ गया कार्बन के साथ? नाइट्रोजन। तो क्या बोलेंगे इनको? फर्स्ट वाले को हम्म तो ये बेंजीन है और एक
pyridine है, तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर्स में? तो एक है मेड अप ऑफ कार्बन्स ओनली, फर्स्ट स्ट्रक्चर, एंड दे आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मतलब रिंग में सिर्फ कार्बन हो तो दैट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, और एट द, तो इसका मतलब बेंजीन होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, और ऐसा कंपाउंड जिसमें एक या एक से ज़्यादा हेट्रो एटम्स हों रिंग में, कार्बन एटम के रिंग में, तो उसके दैट इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसका मतलब pyridine जो है दैट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो गई होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन थे, क्लोज चेन थे। ओपन चेन को एलिफेटिक एसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, तो और उसको साइक्लिक और रिंग कंपाउंड बोलते हैं। तो क्लोज चेन कंपाउंड जो हैं दे आर होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। नाउ होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो देखो ये दोनों ही होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक हैं, सॉरी होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक हैं, बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बोलो। bonds का difference. First में single bond थे और second में double bond. हाँ, तो इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस, क्या बोलेंगे इनको? ओके, यस। सो अगर कोई होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो जिसमें कार्बन एटम्स जो हैं सिंगल बॉन्ड्स ही हो सिर्फ, तो कंपाउंड्स को बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसलिए मैंने वहाँ मेंशन किया था कि ए साइक्लिक और एलिसाइक्लिक में डिफरेंस है ना। और अगर तो साइक्लोहेक्सेन जो है एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, और इट कैन बिहेव एज अ एलिफेटिक कंपाउंड। देन if homocyclic compound contain at least one aromatic ring, बेंजीन की तरह हो केमिकल बिहेवियर में, तो उसको बोलते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया कि होमोसाइक्लिक और आइदर है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। Now aromatic compounds, see this is aniline, this is phenol, so they contain at least one benzene ring, so that is called benzenoid। aromatic compounds जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो तो that is called benzenoid। जैसे ये है, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक, ट्रोपोन और ट्रोपोलोन, दे आर बोथ एरोमेटिक, बट एरोमेटिक रिंग है बट अदर देन बेंजीन है। बेंजीन के अलावा कोई एरोमेटिक रिंग हो तो दे आर कॉल्ड नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स। तो एक हो गया बेंजीनोइड जिसमें बेंजीन रिंग हो एटलीस्ट वन, और नॉन बेंजीनोइड जो एरोमेटिक तो हो बट बेंजीन रिंग ना हो। नो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो अभी कर रहे थे हम कि जिसमें कार्बन के अलावा कोई एटम हो, तो जैसे ये THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है which contain at least one heteroatom in the ring, so that is heteroalicyclic compound।
दिस इज फ्यूरान। तो देखो फ्यूरान के हाइड्रोजन जो हैं उनमें एक एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो 4 हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोलते हैं, और वो हेट्रोएलिसाइक्लिक कंपाउंड है और ये एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड which contain at least one heteroatom in the ring, that is called heteroaromatic compounds. जी बेटा। सर वो पिछले एग्जांपल में सर यहाँ पर ये एरोमेटिक के लिए उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर हाँ, वन लोन पेयर इज टेकिंग पार्ट, वो आगे बताता हूँ मैं पूरा। ये बेंजीनोइड टाइप हुआ, हेट्रोएरोमेटिक में भी बेंजीनोइड टाइप और नॉन बेंजीनोइड टाइप। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन, क्लोज चेन, ओपन चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक भी, हेट्रोएलिसाइक्लिक, हेट्रोएरोमेटिक, एरोमेटिक बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड, बेंजीनोइड, non-benzenoid. These are the classification. So give the class of the following compound based on their structure. What is the name of this compound? So this is isobutane. And what is the class of the compound? So it is acyclic, or we can say open chain compound. ब्रांच चेन भी है ना, बट इट इज ओपन चेन। मीन्स इन दोनों में देखें, अगर ओपन चेन और क्लोज चेन में, तो इट इज ओपन चेन, एट द सेम टाइम इट इज ब्रांच चेन कंपाउंड। सेकेंड, चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? हाँ, तो याद रखना बेंजीन रिंग की तरह ही हो, बट एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन हो, तो दैट इज कॉल्ड पिरिडीन। और व्हाट इज द क्लास ऑफ द कंपाउंड? यस, हेट्रोसाइक्लिक है। और ओके, और पहले तो क्लोज चेन कंपाउंड है ना ये, और एरोमेटिक भी है, तो हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड और बेंजीनोइड कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड दो बेंजीन रिंग, दो बेंजीन रिंग ऐसे अटैच हो, दैट इज कॉल्ड नेफ्थलीन। और व्हाट इज द क्लास ऑफ द कंपाउंड? बेंजीनोइड, वेरी गुड। और होमोसाइक्लिक, होमो एरोमेटिक, राइट। क्लोज चेन, तो क्लोज चेन कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीनोइड में। बोलो, this is tropone. What is the class of the compound? Close chain, good. और close chain, heteroaromatic, heterocyclic,
हेट्रो नहीं हो बच्चा, होमोसाइक्लिक हुआ ना ये, क्योंकि रिंग में तो कार्बन ही है ना बच्चे, जो रिंग बना है उसमें अगर हेट्रो एटम हो तो बोलते हैं उसको हेट्रोसाइक्लिक। तो रिंग में तो कार्बन ही है तो इट इज होमोसाइक्लिक। और एरोमेटिक तो है ही। और बेंजीनोइड है कि नॉन बेंजीनोइड? हाँ, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड है ये अभी बताया था। एजोसिन, व्हाट इज क्लास ऑफ द कंपाउंड? लो, हाँ, तो पहले क्लोज चेन है, हाँ, नॉन बेंजीनोइड है। हेट्रो एरोमेटिक है, नॉन बेंजीनोइड। पिरिडीन के अगर सारे डबल बॉन्ड्स को हटा दें तो इसको बोलते हैं पिप्रिडीन। ये था ना पिरिडीन, देखा होगा आपने, अभी बनाया था। दिस वाज पिरिडीन। तो पिरिडीन के अगर पाई बॉन्ड सारे हटा दें और उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें, है ना, तो उसको बोलते हैं पिप्रिडीन। ये पिरिडीन थी, तो उसी के एडिशन कर दिया। जैसे ये पायरोल था, ये सॉरी फ्यूरान था। फ्यूरान के अगर सारे पाई बॉन्ड हटा के ऑक्सीजन ऐड कर दें तो इसको THF बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। वैसे ही पिरिडीन के इसको बोलते हैं पिप्रिडीन। तो ये क्लोज चेन कंपाउंड है, हेट्रो साइक्लिक है, हेट्रो एलिसाइक्लिक बोलेंगे। और इसका बोलो, दिस इज कॉल्ड, यार ना बेंजीन रिंग पे अगर CH3 लगा हो तो उसको टॉल्यूइन बोलते हैं, OH लगा हो तो फिनोल बोलते हैं। अभी पढ़ा था कि बेंजीन रिंग पे अगर OH ग्रुप लगा हो तो दैट इज कॉल्ड फिनोल, और उसी बेंजीन रिंग पे अगर NH2 लगा हो तो दैट इज कॉल्ड एनिलीन। तो ये भी क्लोज चेन कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक है, एरोमेटिक है, बेंजीनोइड है। इसका फ्यूरान, फ्यूरान पायरोल में नाइट्रोजन होता है बच्चे, नाइट्रोजन हो तो दैट इज कॉल्ड पायरोल। इसी में अगर सल्फर हो दैट इज थायोफीन। तो ये क्लोज चेन कंपाउंड है, हेट्रो एरोमेटिक है, नाउ होमोलॉग सीरीज अभी पढ़ा था। सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय मिथाइलिन ग्रुप। जैसे सीरीज ऑफ एल्केन है, मिथेन, इथेन, this is propane. So what are the characteristics of homolog series? उनका सेम जनरल फॉर्मूला होता है पहले। दूसरा, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है उनमें। तो क्योंकि सक्सेसिव मेंबर जो हैं वो दे डिफर फ्रॉम देयर
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2 ग्रुप, तो उनका मॉलिक्यूलर वेट में जो डिफरेंस होता है दैट इज 14 यूनिट्स। होमोलॉग सीरीज जो है दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर केमिकल मेथड्स। होमोलॉग्स जो हैं दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज और दे शो ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, सॉलिबिलिटी है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मेनली कंटेन्स कार्बन। तो चलो IUPAC नोमेनक्लेचर करने हैं, दैट इज द मेन पार्ट। तो पहले रूल्स, तो रूल नंबर 1 है लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी कंपाउंड है उसका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो है कार्बन एटम की वो कंसिडर करनी है, और इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कार्बन एटम्स की जो होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। तो कार्बन एटम्स जो पेरेंट चेन में इंक्लूड होते हैं, है ना, वो तो उसके पार्ट हो गए। अगर उसके अलावा कार्बन एटम हैं जो पेरेंट चेन में नहीं है तो उनको बोलते हैं ब्रांच चेन और सब्स्टिट्यूएंट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो अभी आ रही है? यस सर। ओके। तो देखो ये कार्बन एटम की चेन है। कार्बन जो है वो मिथाइल ग्रुप्स हैं, मिथाइल ये सब्स्टिट्यूएंट्स जो चेन में नहीं हैं उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। कार्बन एटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन they are called as branch chain or substituent। अब इसमें अगर हम ये चेन लेते हैं, जनरली हम स्ट्रेट चेन बोलते हैं, तो बच्चों को लगता है कि जो स्ट्रेट उसमें हो, ऐसा नहीं है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन की बात होती है। अगर हम ऐसे स्ट्रेट चेन माने इसको पेरेंट चेन तो 7 कार्बन हैं, बट इसी को अगर हम ऐसे ले तो कितने कार्बन हैं? 9। तो इस तरह से अगर हम स्ट्रेट चेन पहले वाली कंसिडर करते तो 7 कार्बन थे, अब कितने हो गए? 9। तो कौन सी कंसिडर करेंगे हम? 9 वाले, है ना, सेकेंड वाली। तो ये रॉन्ग चेन सिलेक्शन हुई, तो दिस इज द करेक्ट चेन सिलेक्शन। तो सर हाँ जी, सर क्या कोई रीजन है कि आपने फर्स्ट वाला चूज नहीं किया? हाँ बेटा, क्योंकि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट, अगर हम फर्स्ट कंटिन्यूस चेन कंसिडर करते हैं तो 7 कार्बन आ रहे हैं, और सेकंड कंसिडर कर रहे हैं तो 9 आ रहे हैं। तो कौन जो है कौन सी कंसिडर करेंगे? ऑब्वियसली सेकंड। ठीक है।
ओके। Yes. रूल नंबर 2, लोएस्ट नंबर रूल। तो पेरेंट चेन का जो नंबर है उसको हम ऐसा तरह से नंबर देंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर मिले। जैसे ये मान लिया चेन है, तो इनमें से ये पेरेंट चेन है, अगर गलती से हम उल्टी साइड से नंबरिंग कर दें तो देखो जो सब्स्टिट्यूएंट है फर्स्ट चेन में उसको कौन सा नंबर मिल रहा है, 2, है ना, और सेकंड नंबरिंग में उसको क्या मिल रहा है, 4 है। तो दोनों में 5-5 कार्बन ही है। चेन सिलेक्शन इज ओके, बट जो नंबरिंग है दैट इज रॉन्ग इन द फर्स्ट केस, इन द सेकंड केस सॉरी, क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूएंट को जो है लोएस्ट नंबर नहीं मिल रहा है। लोएस्ट नंबर कब मिल रहा है, जब हम उसको 2 दे रहे हैं, मतलब वी आर स्टार्टिंग नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट। अगर राइट से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो रॉन्ग हो रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको राइट से करोगे तो रॉन्ग होगा, लेफ्ट से करोगे तो राइट होगा, इट्स नॉट लाइक दैट, बट इस तरह से नंबरिंग होनी चाहिए कि जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट विल गेट द लोएस्ट नंबर। रूल नंबर 3, अब ये चेन है, ये चेन है। पहले केस में 6 कार्बन है, सेकंड केस में भी 6 कार्बन है, दोनों में कार्बन तो 6 ही है। तो कौन सी चेन कंसिडर करेंगे हम, फर्स्ट वाली। क्यों फर्स्ट, क्यों Second one. ये सेकंड वाली क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूएंट कम है। सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होने चाहिए कि कम होने चाहिए? सर CS के बाद CS2 आना चाहिए, पर वहाँ पे CS का CS3 दे दिया। एक्चुअली फर्स्ट केस में देर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, इन द सेकेंड केस देर इज ओनली 1 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो वी शुड choose that chain which has more number of alkyl substituents. So that's why second one is wrong, first one is right. So if the chain of equal length are possible, then we select the one with the larger number of side chains. Substituent ज़्यादा होंगे उस चेन को हम कंसिडर करेंगे अगर नंबर सेम हैं तो। रूल नंबर 4, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन जो है एक से ज़्यादा बार आती है, जैसे 2 बार तो डाई लिखेंगे, 3 बार तो ट्राई, 4 बार तो टेट्रा, 5 बार तो पेंटा, और दे आर अटैच्ड टू द नेम्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे ये है चेन, है ना, 4 कार्बन की चेन है, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको नाम क्या लिखेंगे? 2,3 हाँ, तो अगर इसको लिखना है हमें तो सबसे आगे क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको बोलते हैं प्रीफिक्स।
तो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे ही मतलब एक पेज पे लिखा है पूरा प्रीफिक्स सफिक्स, वो सारे याद करने हैं आपको। वर्ड रूट आपने 10th में ही करे हैं, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, दैट इज वर्ड रूट। और प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? एन, इन, आइन। और सेकेंडरी सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप के लिखते हैं, जैसे सी एच ओ के लिए अल, ये सारे लर्न करने हैं। ओ एच के लिए ओल, सी ओ एच के लिए ओइक एसिड। इट इज 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम बोलो। तो 3,3 डाइइथाइल हेक्सेन। 2,3 तो 3,3 डाइमिथाइल डाई इथाइल 2, 3, 4 हेक्सेन। तो इसमें ये जो है दैट इज पेरेंट चेन। और इसे नंबरिंग कर देंगे। थ्री, 3 डाई तो ऑब्वियसली इट इज 3,3, राइट। Yes, sir. क्योंकि 3 + 3 6, 4 + 4 8, तो लोएस्ट सम रूल अप्लाई करेंगे। सो दिस वन इज करेक्ट। सो इट इज 3,3-डाइइथाइल हेक्सेन। इसका नाम 2,5,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। जस्ट एक बार फिर देखो। सॉरी सर, 2,2,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। 2, 2, हाँ 2,2,5 ना, ठीक है। इट इज 2, 2, क्योंकि अगर ऐसे लेंगे तो 2,5,5 आएगा, बट इधर लेंगे तो 2,2,5। सो 2 + 2 + 5 9, 2, 5, 5 12, so 9 is less than, so lowest sum rule is applied, therefore it is wrong and this one is right. So this is 2,2,5 trimethyl hexane. सर एक बार दोबारा बता सकते हैं 225 क्यों हुआ? क्योंकि 2,2,5 में हमें ये देखना है कि जो नंबर का सम है वो कितना हो रहा है, 9। बट अगर हम उल्टी साइड से लेते हैं तो क्या होता है 2,5,5, तो 5 + 5 + 2 12। ऐसे भी देखने की जरूरत नहीं है, आप हाँ लोएस्ट सम रूल लगना है। आप ऐसे भी देख सकते हो, लोएस्ट लोकेंट रूल भी 2, 2 ठीक है, बट इधर 2 है इधर 5 है, तो लोएस्ट को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। ऐसे लिया ना मैंने 2 + 2 + 5, इट इज 9, 2 + 5 + 5, तो इट इज 12, 9 is less than 12,
तो लोएस्ट सम रूल जो है वी हैव टू अप्लाई। ठीक है, Yes, sir. so if two different substituents are located at equivalent positions from two ends, तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे, अगर लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाता है, मान लिया दोनों ही सेम पोजीशंस पे हैं दोनों साइड से, तो हमें फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा। जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा दैट विल गेट द लोएस्ट नंबर। जैसे देखो, ये एक CH, अब देखो पेरेंट चेन तो यही है, एक मिथाइल है एक इथाइल है। अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो 3 पे क्या आता है, मिथाइल, और 4 पे इथाइल। अपोजिट साइड से करते हैं तो 3 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल। तो कौन सा रॉन्ग माना जाएगा, ऊपर वाला, क्योंकि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है दैट शुड गेट द लोएस्ट नंबर। है तो 3 4 ही, तो सम तो 3 + 4 7 ही होगा दोनों का साइड से। बट अब हम, ये लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो गया, यहाँ लोएस्ट सम रूल फेल हो गया, तो हम अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको लोएस्ट नंबर देना है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो ये 5th रूल हो गया। नाउ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है कि जिसमें सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट हो। इसमें ये पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन को हमने नंबरिंग कर दी। अब पेरेंट चेन में ये जो चेन है, देखो इसकी बात करें अगर हम, तो इसमें क्या हो रहा है कि देखो जो पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच एटम है ना, उसको नंबरिंग दे दो। तो कंटिन्यूस चेन करिए 3 कार्बन की, 1 2 3, और उसके भी आगे सब्स्टिट्यूएंट है। देखो, तो ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जिसमें सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट हो, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हो गया तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नाम कैसे लिखेंगे हम? 3 कार्बन है तो क्या बोलते हैं उसको? प्रोपेन। प्रोपेन, तो उसको क्या बोल देंगे? प्रोपाइल, क्योंकि वो तो सब्स्टिट्यूएंट है ना। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता तो प्रोपेन बोलते हैं, बट वो सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए प्रोपाइल। और उसके 1 पे भी सब्स्टिट्यूएंट है 1 कार्बन वाला, तो मिथाइल, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल बोलेंगे इसको। तो एक तो ये 8 कार्बन है तो ऑक्टेन, 2 पे और 6 पे 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल, और 4 पे ये पूरा है तो इसको क्या बोलेंगे? 1 मिथाइल प्रोपाइल।
ओके, ये 1 मिथाइल प्रोपाइल कैसे लिखा है ये समझ में आया? Yes. Yes. ओके, किसी को इसमें डाउट? No. ओके ओके, इसका आईयूपीएसी नेम बोलो। Fun. Two dimethyl. Again. ओके, तो Nonane. तो इसका नाम होगा, क्योंकि पेरेंट चेन से अटैच है उसको नंबर 1 देंगे। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, दोनों साइड से 5 ही हो रहा है तो कहीं से भी कर दो। क्योंकि इधर जाते तो 6 7 8 ही होता, तो इसलिए 9 नंबर की चेन ली। तो ये आई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3, तो 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल, और उसके भी 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो 5 पे कॉम्प्लेक्स हो तो ब्रैकेट में लिखते हैं ना, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। फाइव पे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन। तो ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन, और उसके ऊपर है मिथाइल, तो इट इज मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। and this one is cyclopentane, 1 ethyl 2 methyl cyclopentane। ये 1 इथाइल 2 मिथाइल क्यों लिखा समझाया? वन इथाइल 2 मिथाइल क्यों लिखा इसको? गॉट इट? क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आता है इथाइल, इसलिए राइट इट्स नेम। बोलो इसका नाम। चला रहा है हॉटस्पॉट चला। कर दिया। One second.
आपका फोन करना मुझे। सॉरी, इट वाज डिस्कनेक्टेड। बोलो बेटा, क्या नाम होगा इसका? हेलो, क्या नाम होगा बोलो? So 1ethyl 2,2 dimethyl कम अगेन, क्या बोल रहे हो? 1ethyl 2,2 रॉन्ग बेटा। एक्चुअली अगर आप इसको 1 लेते हो तो 1 2 2 हो गया, और उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा 1 1 2। तो ऑब्वियसली लोएस्ट लोकेंट रू लग रहा है, तो फिर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लगाना है। अगर दोनों एक एक होते तो लगाते। तो इट इज साइक्लोहेक्सेन 2 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल। 2 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वाला कल करते हैं, यहाँ तक नेक्स्ट क्लास में करते हैं, यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ तक कर लेना एक बार, और वो टेबल पूरा जो एनसीईआरटी में दिया है, लर्न इट। Yes. ओके, ओके देन यू कैन लीव नाउ। सर जी बेटा। सर एक्चुअली मुझे वो था मैं परसों को ठीक है, ठीक है। हाँ, आज थोड़ा लेट भी हो गया है ना? हाँ ओके, बाय बेटा।